Hello dear student, our topic is common behavioral disorder and their management. So what are the common behavioral disorder and what are the management of this disorder we will discuss in this unit. Okay, first of all we will discuss about introduction of common behavioral disorder in children. So there is disruptive behavior should be considered from both a developmental and a biopsychosocial framework. A child who is not doing what adults want him to do at a particular time is considered as a behavioral disorder. So what is behavioral disorder? So the behavioral disorder means what an adult wants to a child to do that, but child do not like that. Okay, मीन्स एडल्ट जो भी चाइल्ड से नीड रखता है उसकी एज के अकॉर्डिंग, दैट एज के अकॉर्डिंग हम जो उससे नीड रखते हैं उस के अकॉर्डिंग वो उस पर्टिकुलर टाइम पर वो नहीं कर पाता है, तो वो है बिहेवियरल डिसऑर्डर. देन वी मूव टू डेफिनेशन. A person is said to have a behavioral disorder when he or she demonstrates behavior that is noticeably different from that expected in the school or community. Means कि a child behave a child behave which is not expected from school or community. Means कि जो community को और जो स्कूल को या पेरेंट्स को जो उस एज के अकॉर्डिंग उस एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो कहलाएगा बिहेवियरल डिसऑर्डर. So first we list out the common behavioral disorder. The first one is repetitive behaviors, means repetitive behavior, finger sucking or nail biting, very common, temper tantrum, evening colic, stranger reaction or anxiety, pica, breath holding spasm, stuttering and stammering. Okay, first we discuss about repetitive behavior. Repetitive behavior means सेल्फ लिमिटिंग, मीन्स कि वो अपने आप में खुद में इन्वॉल्व रहेगा और कुछ ऐसे एक्शंस वगैरह वो रिपीटेड करता रहेगा. ओके, इट बिगिन बिटवीन 6 to 10 years. ओके, एग्जांपल बॉडी रॉकिंग, हेड बैंगिंग. ओके, बॉडी को रॉकिंग मीन्स मूव करना, हेड बैंगिंग करना. ओके, in 5 to 20% of children during infancy and toddler years can result in callus formation, abrasion and contusions. हेड बैंगिंग से 5 to 20% चिल्ड्रन को इंजरी हो जाती है. सो वी हैव टू एजुकेट द पेरेंट्स टू cope up with the particular child. Now management, assurance, teach parents to ignore age concern and punishment can reinforce it. So encourage the parents to ignore punishment. So, if the parent give more punishment, child will do more like that. So encourage the parents to ignore punishment. Next is thumb sucking or nail biting. It is very common disorder that we will see in later stage also. Sensory solace for child, internal stroking to cope up with stressful situation in infants and toddlers. It is said that thumb sucking or nail biting is the method to cope up with stress, reinforced by attention from parents. If the parents प्रॉपरली अटेंशन करेंगे तो इसको स्टॉप किया जा सकता है. मोस्ट गिव अप बाय 2 years, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, डेवलपमेंटल डिले, नेग्लेक्ट. ओके, मोस्ट ऑफ द चाइल्ड विल गिव अप बाय 2 years, बट predisposing factor is that developmental delay, any developmental continue with finger sucking or thumb sucking and nail biting. It is very common. So the main cause is predisposing factor is that developmental delay, any developmental
problem is occurring, then it will leads to thumb sucking or any thumb sucking and nail biting and neglect. If parents behavior is neglecting, then it may be lead to it may be lead to nail biting or any behavioral disorder. एडवर्स इफेक्ट मॉलिक्यूशन यानी कि ओपन बाइट, मास्टिकेशन डिफिकल्टी, स्पीच डिफिकल्टी, DNT mainly, lip-sync and speech defect, bond defect and digital abnormalities. These are the adverse effect of nail biting or thumb sucking. Management: reassure parent that it's transient, improve parental attention and nurturing. So first of all, our responsibility is teach the parents to improve parental attention, give proper attention to the child, teach parent to ignore and give more attention to positive aspect of child behavior. We will teach the parents to ignore this activity and encourage the child to stop this type of activity. And the second thing is give more attention to positive aspect of child behavior. What are the positiveness in the child? Give more attention to the positive aspect. Then provide child praise, reward for substitute behavior. If child do any good act, give praise or reward. It will encourage the child. Bitter salves, thumb splints, gloves may be used to reduce thumb sucking. Okay, bitter salves means कुछ bitter सा उसके thumbs के ऊपर लगा दिया, thumb splints कर सकते हैं. Gloves may be used to reduce thumb sucking. Next is temper tantrum. It is very common disorder. So what is temper tantrum? Unpleasant emotional outburst. मैनी टाइम हम देखते हैं कोई छोटा बच्चा होता है, उसको हम उसकी जो डिमांड है उसको हम लोग पूरी नहीं कर पाते, उसकी जो विश है उसको हम पूरी नहीं कर पाते, तो वो अपना गुस्सा करना शुरू कर देता है. कभी कभी वो फर्श पर रोल आउट करना शुरू कर देता है, बर्तन तोड़ देता है, कुछ खिलौने तोड़ देता है. तो उसको जो गुस्सा शो करता है वो उसको हम बोलते हैं टेम्पर टेंट्रम. In 18 months to 3 year old, due to developmental of sense of autonomy, child display defiance, negativism and opportunism by having temper tantrum. Normal part of child development get reinforced when parents respond to it by punitive anger. तो ऐसा देखा गया अगर पेरेंट्स उसको पनिशमेंट के थ्रू या पनिशमेंट बिहेवियर के थ्रू उसको ट्रीट करते हैं तो धीरे धीरे ये कम होने लग जाता है. चाइल्ड रॉन्गली लर्न दैट टेम्पर टेंट्रम आर ए रीजनेबल रेस्पॉन्स टू फ्रस्ट्रेशन. चाइल्ड को ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेशन का जो रेस्पॉन्स है वो टेम्पर टेंट्रम के थ्रू शो करना है. मैनेजमेंट इन जनरल पेरेंट एडवाइज टू सेट ए गुड एग्जाम्पल टू चाइल्ड, पे अटेंशन टू चाइल्ड, स्पेंड क्वालिटी टाइम, हैव ओपन कम्युनिकेशन विद चाइल्ड, हैव कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर. सो द मैनेजमेंट इज पेरेंट्स को हमें एडवाइस करना है कि वो एक चाइल्ड के सामने अच्छा एग्जाम्पल पेश करें. मीन्स कि उसके सामने ऐसे एग्जाम्पल रखे, देखो वो बच्चा कितना अच्छा है, गुड मैनर्स वाला है, वो ऐसे जिद नहीं करता, उसको ऐसा लगेगा हाँ मुझे भी ऐसा करना चाहिए. उसके अलावा प्रॉपर अटेंशन उस चाइल्ड को हमें प्रोवाइड करना चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज स्पेंड क्वालिटी टाइम. ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ में बिताए, ऐसा हमें पेरेंट्स को बोलना है. देन ओपन कम्युनिकेशन विच मीन्स कि बच्चे को आपसे उसके पेरेंट्स से बात करने में एजिटेशन नहीं होना चाहिए, वो फ्रैंकली अपने पेरेंट्स से बात कर सके और बिहेवियर के अंदर कंसिस्टेंसी लाने के लिए उनको एनकरेज करना. ड्यूरिंग टेम्पर टेंट्रम पेरेंट्स टू इग्नोर चाइल्ड एंड वंस चाइल्ड इज काम टेल चाइल्ड दैट सच बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल. इस टाइम पे हमें क्या करना है, जब वो टेम्पर टेंट्रम स्टेज में है, जब वो गुस्सा कर रहा है, उस टाइम पर उसको इग्नोर करना है. और जब वो बच्चा शांत हो जाए, पूरी तरह से शांत हो जाए, तब उसको उसके बिहेवियर के बारे में बताना है कि ये बिहेवियर अच्छा नहीं है. वर्बल रेप्रिमेंड शुड नॉट बी एब्यूजिव. जो भी उसको हम बोल कर कहने वाले हैं तो वो एब्यूजिव ना हो. नेवर बीट और थ्रेटन चाइल्ड. पीटना नहीं है और उसको डराना नहीं है, नहीं तो उसके
और कहीं नेगेटिविटी हमें देखने को मिलेगी. इम्पोज टाइम आउट इफ टेम्पर टेंट्रम इज डिस्ट्रप्टिव, आउट ऑफ कंट्रोल and occurring in public place. Okay. Next is evening colic. Intermittent episodes of abdominal pain and severe crying in normal infants. ठीक है. हम देखते हैं इवनिंग के टाइम पर कई सारे बच्चे बिना वजह से रोना स्टार्ट कर देते हैं. कभी कभी उनके कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, दर्द हो सकता है, लेकिन कभी कभी बच्चों के अंदर एक ट्रेंड बन जाता है कि बस उसी इवनिंग टाइम पर वो क्राई करना स्टार्ट कर देते हैं. Begins at 1 to 2 week age and persists till 3 to 4 months, carrying usually in late afternoon or evening. Causes not known. More likely if the child is overactive and parents are over anxious. तो या तो चाइल्ड ज़्यादा एक्टिव है या फिर पेरेंट्स उसके ओवर एंक्सियस में इसकी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले हैं. कुड भी मैनिफेस्टेशन ऑफ हंगर की वजह से भी हो सकता है, एरोफेजिया हो सकता है, इमेच्योरिटी ऑफ इंटेस्टाइन हो सकता है, ओवर फीडिंग हो सकता है. देन मैनेजमेंट ड्यूरिंग एपिसोड, होल्ड द चाइल्ड इरेक्ट और प्रॉन. ठीक है, जब उसके अंदर इवनिंग कॉलिक स्टार्ट है उस टाइम पर उस बच्चे को आपको या तो इरेक्ट पोजीशन में या प्रॉन पोजीशन में रखना है. अवॉइड ड्रग्स, किसी तरह का कोई मेडिसिन चाइल्ड को प्रोवाइड नहीं कराना है. कॉपिंग विद द पेरेंट, रीएश्योर द पेरेंट दैट इन्फेंट इज़ नॉट सिक. सबसे पहले तो पेरेंट के साथ में बात करनी है कि बच्चा बीमार नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स को कभी कभी ऐसा लग सकता है कि वो बार बार रोता है, इसका मतलब उसके अंदर कोई बीमारी है. तो हमें पेरेंट्स को इस तरह से पूरी तरह से मोटिवेट करना है कि उस बच्चे के अंदर किसी तरह की कोई भी बीमारी नहीं है. दे नीड टू केयर मोर विथ रिपीटेटिव साउंड एंड स्टिमुलेट लेस विथ डिक्रीज इन पिकिंग अप एंड फीडिंग विथ एवरी क्राई. ठीक है, उस बच्चे को हमें जिसमें उसको ज़्यादा एन्जॉयमेंट मिलता है इस तरह का बिहेवियर उसके साथ में करना है. इस तरह के स्टिमुलेशन उसके सामने लेके, जैसे कोई म्यूजिकल टॉयज़ हो सकता है ना, या कोई ऐसा साउंड उसके सामने प्रोड्यूस करे जिससे कि उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाए. दूसरा, जब भी वो ऐसा करता है, क्राई करता है, तो उस टाइम उसको फीडिंग दिया जा सकता है. नेक्स्ट इज स्ट्रेंजर रिएक्शन. बहुत सारे चाइल्ड क्या करते हैं, जैसे किसी अजनबी को देखेंगे रोने लग जाएंगे या जाके छुप जाएंगे या डर जाएंगे. तो ये भी एक तरह का डिसऑर्डर है. इसके अंदर क्या होगा, बाई 6 to 7 month एज इन्फेंट कैन डिफ्रेंशिएट फ्रॉम प्राइमरी केयर गिवर्स एंड अदर. 6 to 7 months के अंदर वो अपने घर वालों को पहचानने स्टार्ट कर देता है. तो जैसे ही उसके अलावा किसी और को देखेगा तो वो एक अलग सा रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा. एट दिस एज दे डेवलप फियर ऑफ अदर्स. दिस में लास्ट फॉर ए फ्यू मंथ्स टू पीक अराउंड 13 to 15 months. 13 to 15 months तक वैसे ये कंट्रोलेबल स्टेज में आ जाता है, लेकिन कभी कभी उसके बाद भी ये देखने को मिलता है. डेवलपमेंट, इट माइट बी एन इंडिकेशन फॉर लेटर डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम एज सेपरेशन और एंजाइटी. अगर ये ऐसा देखने को मिलता है इसका मतलब आगे कुछ और प्रॉब्लम होने वाली है. ठीक है, कुछ और बिहेवियर प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकता है, जैसे कि सेपरेशन, एंजाइटी. द मैनेजमेंट इज टीच रिलैक्सेशन टेक्निक सच एज स्लोली एक्सपोजिंग देम टू स्ट्रेंजर. धीरे धीरे उसको अजनबी लोगों के साथ में आप उसके साथ में रहकर उसके साथ में उनको मीटिंग कराओ, उनसे मिलवाओ, देखो ये कौन है. इस तरह से उनको अपने साथ में रखते हुए उनसे मिलाना. इनिशियली फ्रॉम ए डिस्टेंस, लेकिन स्टार्ट जब आप करते हैं तब हमें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना, मतलब एकदम से उसको पूरा अजनबी के साथ में नहीं छोड़ देना है. आस्किंग देम टू ग्रेट एंड स्लोली एडवांस. रीएश्योर द पेरेंट दैट द बिहेवियर ग्रेजुअली डिक्लाइंस. तो हमें उसको ग्रीटिंग करने की वजह से बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग, ऐसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ऐसे कुछ भी उसको हाय, चाचा, मामा, इस तरह से उनको मोटिवेट करके उनको ग्रीट करने के लिए बोलना है. और पेरेंट्स को ऐसा बोलना है कि ये जो उसका बिहेवियर है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होने लग जाएगा. बट ही परसिस्ट रेफर टू चाइल्ड साइकिल. लेकिन अगर ये कंटिन्यू रहता है तो हमें उनके पेरेंट्स को बोलना होगा कि अगर ये कंटिन्यू रहता है 13 to 15 months के बाद भी, तो हमें उसके पेरेंट्स को बोलना है कि उसको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाए. नेक्स्ट इज पिका. पिका मीन्स अनईटेबल सब्सटेंस ईटिंग. Repeated or chronic ingestion of non-nutritive substance. It is an eating disorder. It is also called eating disorder.
नॉर्मल इन इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स, एग्जाम्पल मड, पेंट, क्ले, प्लास्टर, चारकोल, सॉइल, है ना, चॉक, बर्तन, है ना, ये सारा बच्चे काफ़ी कॉमनली देखने को मिला है, बच्चे ये चीज़ खाते हैं। इसके कॉजेज, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या हो सकते हैं? पेरेंटल नेगलेक्ट, पेरेंट्स अगर नेगलेक्ट करते हैं तो ये रीज़न हो सकता है। पुअर सुपरविजन, अगर पूरी तरह से उसको सुपरवाइज नहीं किया, मतलब कि बच्चे को उसके हाल पर छोड़ रखा है। मेंटल रिटार्डेशन, लैक ऑफ अफेक्शन, साइकोलॉजिकल नेगलेक्ट, फैमिली disorganization, lower socioeconomic class and autism. These are the predisposing factors. Then management, screening for iron deficiency anemia. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसकी वजह से भी वो ऐसा करेगा। वर्म इन्फेस्टेशन, लेट पॉइजनिंग, फैमिली डिसफंक्शन, ट्रीट अकॉर्डिंगली टू कॉज, जो उसका कॉजेज है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करना है हमारे को। नेक्स्ट इज ब्रीथ होल्डिंग स्पाज्म। हम लोग देखते कभी कोई बच्चा रोते रोते एकदम से उसकी ब्रीथिंग रुक जाती है, ब्रीथ स्टॉप हो जाती है कुछ टाइम के लिए, तो वो है ब्रीथ होल्डिंग स्पाज्म। बिहेवियरल प्रॉब्लम इन्फेंट एंड टॉडलर्स, चाइल्ड क्राइज एंड देन होल्ड ब्रीथ अंटिल लिम्प। ओके, तो चाइल्ड क्राई करता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से क्राई करता है, लेकिन उसके बीच में ब्रीथ होल्ड हो जाती है। ओके, साइनोसिस में अकर, समटाइम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और इवन सीजर कैन अकर। इट इज़ वेरी सीरियस कंडीशन। कभी कभी क्या होता है कि उनका कॉन्शियसनेस जो है वो रुक जाता है, ओके, स्टॉप हो जाएगा, और कभी कभी सीजर भी देखने को मिल सकता है। इट इज़ चाइल्ड्स अटेम्प्ट टू कंट्रोल एनवायरनमेंट, पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स। नो रिस्क ऑफ एपिलेप्सी डेवलपिंग इन लेटर लाइफ। अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है जिसका मतलब नहीं उसको बाद में एपिलेप्सी का कोई स्टेज देखने को मिलेगा, तो उसकी इन्फेंट और टॉडलर की बिहेवियरल प्रॉब्लम है जो आगे लेटर स्टेज में उसके क्योर हो जाती है। मैनेजमेंट, रेफर टू चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक, रेफर टू चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट इफ BHS accompanied with head banging और हाईली एग्रेसिव बिहेवियर। अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो उसे हमें रेफर करना है। ओके, नेक्स्ट इज स्टमरिंग और स्टैमरिंग, मीन्स की हकला के बोलना, बोलते हुए उसके अंदर कुछ डिफ़िकल्टी होना। डिफेक्ट स्पीच, स्टम्बलिंग एंड स्पाज्मोटिक रिपीटेशन ऑफ सम syllables with pauses, difficult in pronouncing consonants, कुछ वर्ड्स को बोलने में उसको प्रॉब्लम होती है। कॉजेज बाय स्पाज्म lingual and palatal muscles, usually begins between 2 to 5 years. Child loss self confidence and become more hesitant. उसको बोलने में डिफ़िकल्टी है तो वो अपने आप को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस करेगा, और दूसरा उसको ज़्यादा हेजिटेशन होगा, वो पब्लिक के सामने जाने में थोड़ा सा हेजिटेट करेगा। दे कैन ऑफन सिंग और रेसाइट पोएम विदाउट स्टरिंग, लेकिन ऐसा देखा गया है कि वो बोलने में उसको प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब वो कोई पोएम सिंग करता है या कोई सॉन्ग सिंग करता है तो उस टाइम पर उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, उसको बिना किसी प्रॉब्लम के वो सिंग कर पाएगा। मैनेजमेंट, पेरेंट्स शुड बी रीअश्योर्ड, दे शुड नॉट शो अनड्यू कंसर्न एंड एक्सेप्ट हिज स्पीच विदाउट प्रेशरिंग हिम टू रिपीट। ठीक है, तो पेरेंट्स को उसकी जो डिफ़िकल्टी है, जो प्रॉब्लम है, उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको किसी तरह का कोई प्रेशर डाला जाए या उसके ऊपर उसको इग्नोर किया जाए, नेगलेक्ट किया जाए। ठीक है, लेकिन उसको हम मोटिवेट करके उसकी इस प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। चिल्ड्रन शुड बी गिवन इमोशनल सपोर्ट वेरी नेसेसरी, बिकॉज चाइल्ड को क्या लगता है कि उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपने आप को अलग महसूस करेगा पूरी सोसाइटी से, लेकिन हमें उसको इमोशनली सपोर्ट करना है। ओल्डर चिल्ड्रन विद सेकेंडरी स्टरिंग शुड बी रेफर टू स्पीच थेरेपिस्ट, लेकिन लेटर स्टेज में अगर ऐसी कोई चीज़ देखने को मिलती है तो हमें स्पीच थेरेपिस्ट के पास में उस बच्चे को ट्रांसफ़र करना है। So this is the behavioral disorder. Hope you all understand about the behavioral disorder. Thank you.